माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 81 श्री थॉमस याजिकाडन। माननीय मंत्री जी, जवाब सदन के पटल पर रखा है। मान्य सदस्यगण, आपको मैं सबको इजाजत दूंगा। आप प्रश्नकाल में व्यवधान नहीं करें। ये प्रश्नकाल आपका है, सदन आपका है। मेरा काम सदन को व्यवस्था से चलाने का है। अगर सब सामूहिकता से निर्णय करके सदन चलाना चाहते तो उचित रहेगा। मैं सदन चलाना चाहता हूं, देश की जनता चाहती है सदन चले, इसलिए चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप विराजे, आप सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं। श्री जसकौर मीणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने ये अवगत कराया कि पूर्वी क्षेत्र के कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्र के मुंबई, इनमें 4 अपील न्यायपीठ की स्थापना की जा सकती है। लेकिन माननीय इसके साथ ही ये भी उत्तर है कि न्यायपीठ की स्थापना औचित्य नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मुकदमों को निस्तारण करने के लिए इन प्रांतों में न्यायपीठ की आवश्यकता है। क्या मंत्री जी ये आश्वासन देना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए स्वतंत्र न्यायपीठ की घोषणा करके उन महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, ये सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय का विभाजन का विषय था, लेकिन माननीय सदस्य जी ने महिलाओं को जोड़ते हुए अलग से व्यवस्था का सवाल पूछा है, तो मैं उनका सोच और उनका जो सवाल है उसका मैं बिल्कुल सहमत रखता हूं। लेकिन वो जो मुख्य सवाल है आज के, जो बाइफरकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनटू डिफरेंट बेंचेस सवाल है, तो उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। गीता विश्वनाथन। Thank you, sir. Sir, in its 229 report, the Law Commission of India made recommendations on the need of division of the Supreme Court into a constitution bench at Delhi and secession benches for 4 regions: Delhi, Chennai, Hyderabad, Kolkata. It is also called for Supreme Court to consist of 2 divisions, namely constitutional division and legal division. And the judicial system in India is overloaded. As of May 22, sir, there were an overload of 4.7 crore pending cases. Out of them, 87.4% are pending in subordinate courts, 12.4 in high courts, while nearly 1,82,000 cases have been pending for over 30 years. But this spike is not reflected in the number of judges available to hear these cases. Can the minister state that the details of measures being taken, proposed to be taken to ensure faster disposal of cases and timely? Sir, All India Judicial Service lines of the Indian Administrative Service of the Indian Police Service was moved. Administrative Service and the Indian Police Service were mooted soon after the independence. It was also proposed in the 14th report of Law Commission in the year 1958, which was later endorsed by the Supreme Court of India. Such a move will keep a check on the persisting vacancies in the judiciary and pendency of cases. I would like to know from the Honourable Minister, state whether such proposal is being considered by the government. Thank you, sir. Sir, honourable member has put various questions and raised certain issues which are very vital, but the main point which deals with the issue of the report submitted by the Law Commission
In fact, Law Commission has already submitted 3 reports. One which Honourable Member had mentioned, the 229th report of the Law Commission that was submitted, that is the latest one submitted in 2009. And before that, the Law Commission also submitted a report, 95th report in 1984, and then second report was submitted in 1988. In all the reports submitted by the Law Commission of India, they have recommended that there should be establishment of Supreme Court regional benches in different regions of the country, specifically East, West, North, South. But there are various views on that. I would not like to dwell at length about various views, but I would like to mention the important part of the Supreme Court decision, because the matter was referred to the Chief Justice of India, and in the full judgment held on 18 February 2010, the Supreme Court full bench decided that this recommendation will be not considered because it doesn't justify, and there is various issues mentioned as a justification, but I would not like to take much time of this House. But if necessary, sometime if larger discussion takes place, I would like to explain in detail to this August House. श्री गोपाल शेट्टी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे मौका दिया। अध्यक्ष जी, पूरे देश भर में 5 लाख से भी ज्यादा लोग बेल एप्लीकेशन के लिए जेल में बंद पड़े हुए। देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल के पहले आवाज उठाई, हमारे लॉ मिनिस्टर इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके ही राज्य राजस्थान में जाकर भी उन्होंने अपनी मन की भावना व्यक्त की। बहुत सारे लोग पैसे नहीं है इसलिए जेल में बंद पड़े हैं, बहुत लोगों का बेल हुआ है इसके लिए वो जेल में बंद पड़े, बहुत लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है इसके लिए वो बंद पड़े हैं। इसलिए लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि 15 अगस्त के पहले इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं उनके प्रयास के लिए, क्या 15 अगस्त के लिए पहले इसके बारे में कोई न कोई अंतिम फैसला मंत्री जी करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, जो सवाल पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई इम्पोर्टेंट फैसले किए हैं। खास करके ये वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं, इसलिए सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के माध्यम से एक कमेटी बनाया गया है, एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है, जिसके तहत जो कन्विक्ट्स हैं, जो कई सालों से जेलों में पड़े हुए हैं, जिसका हम चाहते तो निकल सकते थे लेकिन कई कारणों से नहीं निकल पाए, उसको स्पेशल रिलीज करने का एक फैसला हुआ और नालसा के माध्यम से हमने लीगल असिस्टेंस देने का फैसला किया। और अभी हाल में जयपुर में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, देश के सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस वहाँ मौजूद थे। तो मैंने घोषणा भी किया कि हमारे जो नालसा कार्यक्रम चलता है उसके तहत जितने भी अंडर ट्रायल्स है उनको हम योगदान देंगे, लीगल असिस्टेंस देंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनके माध्यम से उनके नेतृत्व में जो अंडर ट्रायल्स रिव्यू कमेटी है उसका स्पीड को और बढ़ाए ताकि जितने अंडर ट्रायल्स है जिसको रिलीज करना चाहिए क्योंकि उनको लीगल सर्विस नहीं मिलने की वजह से वो जेल में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अमृतकाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रिलीज कर सके कानूनी तहत, इसका घोषणा किया है। और कोर्ट भी सरकार भी एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 श्री के नावा सकनी। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. सदस्यगण, आपको मछुआरे पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रश्न नहीं पूछो। आप यहां पर नारेबाजी करने आए हैं, प्रश्न पूछने आए हैं। नारेबाजी और तख्तियां लगाने के लिए संसद के बाहर आप नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप सदन के अंदर प्रश्न पूछें, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं। रतनलाल कटारिया जी। Okay, sir.
बार बार ये कहा है कि एज सुन एज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर रिकवर्स एंड कम बैक, आप जब निर्णय करते हैं बीएससी में, हम प्राइस राइज के ऊपर जो ये चर्चा चाह रहे हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। और जो मेंशन करना चाहते हैं उसके लिए भी 0 ओवर में आप दे सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है, आपका अनुमति से वो बोल सकते हैं। लेकिन ये कहता काम जो क्या करना चाहता है, प्रश्नकाल भी नहीं चलना चाहते हैं और बाकी डिबेट भी नहीं करना चाहते हैं और बिल भी पारित नहीं करना चाहते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। और इस सदन है चर्चा करने के लिए और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स दे वांट क्वेश्चन आवर्स टू बी रन सर, दे आर डिप्राइविंग द राइट्स ऑफ द मेंबर्स। I condemn this attitude. We are ready for discussion as soon as FM comes back after recovery. When you say they are trying to be littering the House and the MP stature, I condemn this attitude, sir. रतनलाल कटारिया जी। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारे विश्व के अंदर 21 जून को योगा दिवस के रूप में प्रचलित किया है और आज सारा संसार प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हुए योग दिवस को मना रहा है। इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि भारत की महिलाओं में अक्सर अनीमिया की कमी पाई जाती है। क्या हम अवेयरनेस फैलाकर इस योगा के माध्यम से योग के माध्यम से, ये विदेश मंत्रालय का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 83 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।